خوش آمدید سال 2025 تمام اہل لاہور کو لاہور نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک۔ اپنی آنکھوں میں بہتری، روشنی، کامیابی اور فروغ کے خواب سجائے اگلے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلان لاہور کو نئے سال 2025 کی آمد مبارک۔ ہر دل عزیز چینل نے لاہور کے باسیوں کو سال بھر ہر خبر سے باخبر رکھا۔ نئے سال 2025 میں بھی شہریوں کو بر وقت اور ہر وقت خبر پہنچانے کا عزم۔ دعا ہے کہ نیا سال ملک پاکستان کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن لائے۔ دنیا کے لیے نیا سال، پاکستانیوں کے لیے گرانی کا نیا جال۔ 2025 پاکستانی عوام کے لیے مہنگائی کا پیغام لے کر آیا۔ حکومت نے پہلے ہی روز پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے عوام کو مہنگائی کا نیا تحفہ دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے نئے سال کا آغاز ہی مہنگائی سے ہوا ہے، پورا سال مہنگائی کے عذاب میں گزارنا پڑے گا، اور اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد۔ جی بالکل، اوگرا اور حکومت کے طے شدہ فارمولے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر رد و بدل کیا گیا ہے اور 1 جنوری رات 12 بجے سے نئی قیمتوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے جو نئی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس سے لاہور شہر کے لیے جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 253 روپے 60 پیسے کے قریب جا پہنچی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 259 روپے 30 پیسے تک فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ اس میں جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ طے شدہ فارمولہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہوگا اسے صارفین تک پہنچایا جائے گا، اس لیے معمولی سا اضافہ ہوا ہے عالمی مارکیٹ میں، جو کہ مقامی مارکیٹ میں بھی اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم ڈیزل کی قیمت میں چونکہ تقریباً 3 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ خدشہ موجود ہے کہ جو اشیاء مارکیٹ میں آتی ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اس سے اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوتی ہے اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر جس میں روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ میں آنے والی چیزیں جس میں سبزیاں، مرغی یا دیگر گوشت یا اسی قسم کی جو دیگر اشیاء ہیں مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہیں، رکشوں کے کرائے، موٹر سائیکل رکشے کے کرایہ، اسی طرح ٹیکسی وغیرہ، ان کے نرخ بھی بعض کا بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ تاہم مجموعی طور پر ٹرانسپورٹیشن پر اس کے زیادہ اثرات نظر آئیں گے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن ڈیزل کی قیمت میں زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی میں معمولی اضافہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا انحصار آئندہ چند روز میں سامنے آئے گا، تاہم حکومت کی جانب سے جو فارمولہ ہے اس کے مطابق 15 جنوری کو دوبارہ قیمتوں کا تعین کیا جائے گا اور اس میں بھی عالمی مارکیٹ کے تناظر کے مطابق ہی قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے گا۔ جی شکریہ۔ جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، وہیں پر نئے سال میں چینی کی مٹھاس میں بھی کڑواہٹ بدل گئی ہے۔ چینی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ 2 ہفتوں میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 300 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، اور اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالقادر۔ چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے چینی کی سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس حوالے سے مارکیٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایکس مل قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہول سیل مارکیٹ بھی متاثر ہوئی ہے۔ 6 روپے فی کلو تک کا یہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 2 ہفتوں میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا جو ہے وہ 300 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، اور یہ تیزی کا سلسلہ جاری ہے، اور جو 50 کلو گرام چینی کے تھیلے کی موجودہ قیمت ہے ہول سیل میں وہ 6750 ہے، اور فی کلو جو چینی ہے ہول سیل مارکیٹ میں وہ 135 روپے ہے۔ ہول سیل مارکیٹوں میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پرچون مارکیٹوں میں بھی پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو چینی پہلے 135 روپے فی کلو شہریوں کو فروخت کی جا رہی تھی، اب وہ ہول سیل قیمت پہ 135 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جس کے بعد اب پرچون مارکیٹوں میں چینی کی قیمت 146 سے 143 روپے فی کلو تک شہریوں سے وصول کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو شوگر ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ نئی چینی کا سٹاک جب آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر ہوگی۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ پرچون دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہول سیل مارکیٹوں میں قیمتیں عدم استحکام کا شکار ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور صرف 2 ہفتوں میں 300 روپے تک چینی کا تھیلا جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، تفصیلات سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
साल के आखिरी रोज हाईवेज और मोटरवेज टोल टैक्सीज में भी होशरुबा इजाफा देखा गया। एक तो पेट्रोल महंगा, दूसरा टोल टैक्सीज कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है। कौमी शाहराहों पर कार से 60 रुपए, वैगन 100 रुपए, बस से 200 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 250, बड़े ट्रकों से 500 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इतलाक 5 जनवरी से होगा। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जैन अली से। जैन, होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से किया गया है, अवाम का क्या रद्द अमल सामने आया? नाजरीन, आपको अपडेट किया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत नए साल के साथ महंगी कर दी गई हैं और साथ ही साथ साल के आखिरी रोज़ हाईवेज और मोटरवेज टोल टैक्सीज में भी होशरुबा इजाफा देखा गया। एक तो पेट्रोल महंगा और दूसरी जानिब टोल टैक्सीज भी कमाई का बड़ा जरिया बन चुके हैं। जैन अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैन, टोल टैक्सीज में होशरुबा इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से, अवाम का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सड़कों और शाहराहों पर सफर जो है वो मजीद महंगा कर दिया गया है। हाईवेज मोटरवेज के टूल टैक्सेस में जो इजाफा देखने में आया है। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से 60 रुपए, जबकि वैगन से 100 रुपए जो है वो अब लिए जाएंगे, जबकि बस से 200 रुपए, 2 और 3 एक्सल ट्रक से 250, जबकि ट्रक से 500 रुपए टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। मोटरवे M1, M3, M4, M5, M14 और E35 पर भी टूल टैक्सेस में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद तक पेशावर M1 मोटरवे पर कार को 460 रुपए की बजाय अब 5 जो है वो अदा करना होंगे, जबकि लाहौर से अब्दुल हकीम M3 पर कार के लिए टोल टैक्स 650 से 700 रुपए जो है वो कर दिया गया है। पिंडी पटियां से फैसलाबाद और मुल्तान M4 पर कार सवार अब 850 की जगह 950 रुपए जो है वो अदा करेंगे। मुल्तान से सकर M5 पर कार का टोल टैक्स जो है वो 1050 से बढ़ाकर 1100 रुपए जो है वो कर दिया गया है, जबकि बड़ी गाड़ियों को इन शाहराहों पर अब जो है वो 750 से जो बढ़ाकर 5550 रुपए टोल टैक्स जो है वो अदा करने होंगे। जी ठीक है जैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाजरीन, ये तो वही बात हो गई कि सुनता जा और शर्माता जा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। महंगी बिजली ने भी साल भर अवाम को तिगनी का नाश नचाया। अब कहा जा रहा है कि सोलर इस्तेमाल करने वालों को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली गई। सिर्फ 19 रुपए या यूनिट लिया जाएगा। अब कम करके 8 या 10 रुपए करने का प्लान ज़ेरो गौर है। गोया नए साल भी बिजली की मद में किसी किस्म की कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान नहीं है। फ़ाहद अमीन से बात कर लेते हैं। फ़ाहद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, साल 2024 में जो बिजली सार्फिन है वो बिजली की कीमतों से सताए रहे, परेशान रहे और हुकूमत की जानिब से जो है वो सोलर जो है वो मुतारफ किया गया और सोलर का कहा गया कि अवाम सोलर सिस्टम लगाएं और सस्ती बिजली पैदा करें। मगर अब जो है वो नए साल में हुकूमत शमसी तवानाई से बिजली हासिल करने वालों को भी जो है वो टफ टाइम देने पर तैयार है। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के नर्स को जो है वो तब्दील किया जाएगा। जराये का कहना है कि यूनिट नर्स जो है वो 19 रुपए से कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा और हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सार्फिन जो है वो मौजूद है और सोलर सार्फिन अमीर तबका है। ये लोग मिडल और लोअर क्लास नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो यूनिट का रेट जो है वो कम किया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब रुपए का बोझ जो है वो हुकूमत पर पड़ रहा है। जी ठीक है फ़ाहद, साथ ही साथ ये भी अपडेट करते चलें कि LPG माफिया किस तरह से आवाम को लूट रही है और ओगरा ने रेट मुकर्रर किए हैं, लेकिन उन मुकर्रर करदा निर्खों से बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? सर्दी जैसे ही शुरू होती है तो LPG माफिया भी जो है वो सरगर्म हो जाता है और शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर जो है वो LPG दस्तयाब नहीं होती। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो ओगरा की जानिब से रेट तो जो है वो LPG के 4 रुपए फी किलो के हिसाब से कम किए गए हैं, मगर इस वक्त जो शहर में LPG की कीमत है वो कई गुना ज्यादा वसूल की जा रही है। ओगरा की जानिब से 250 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया गया है LPG का, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 270 रुपए से 300 रुपए फी किलो तक जो है वो LPG फरोख्त की जा रही है, जिससे आम सार्फिन जो है वो परेशान है। जी, आम सार्फिन परेशान है। फ़ाहद इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। IPPs को अदायगियाँ भी महंगाई का बड़ा सबब है। नज़र ज़रूरत के तहत लगाए गए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स अब इशराफिया की ज़रूरत बन चुके हैं। IPPs गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं जो ना निगली जाए और ना ही उगली जाए। ये क्या माजरा है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा IPPs से कभी आवाम को छुटकारा मिल भी सकेगा या नहीं?
देखें, आईपीपीज का जिस वक्त क्या अमल में लाया गया था उस वक्त बिजली की पैदावार ना होने के बराबर थी मुकामी सतह पे, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट मुल्क में लाया गया। ताहम उस वक्त जो मुआहदे किए गए उसका खमियाजा ताहाल अवाम भुगत रही है, और इस वक्त की जो सूरत हाल है तकरीबन सालाना 2200 अरब के करीब कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में अवाम इन आईपीपीज को दे रही है। और इसमें सबसे जो खौफनाक अमल है वो ये है कि इस वक्त ज्यादातर आईपीपीज बंद हैं, और बंद आईपीपीज ही अपनी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस ले रहे हैं, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक वो बिजली पैदा करें या ना करें उनको पैसे हर सूरत हुकूमत ने देने हैं, हुकूमत ने पैसे अवाम से लेने हैं। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त जो बिजली महंगी है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आईपीपी के जो मुआहदे हैं उन पर जिस तरह अमल दरामद किया जा रहा है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, और यही सबसे खौफनाक चीज़ है जिसकी वजह से अवाम को महंगी बिजली इस वक्त मिल रही है। गुज़श्ता बरस इस सिलसिले में कुछ इक़दाम किए गए थे, 5 आईपीपी से मुआहदे मुअत्तल भी किए गए, जिसके बाद नए सिरे से उन्हें तयन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मजीद आईपीपी के मुआहदों पर भी नजरसानी की जा रही है। ताहम मजमूई तौर पर इस वक्त जितने आईपीपीज हैं उनमें से तकरीबन 52% आईपीपीज ऐसे हैं जो कि हुकूमती निगरानी में चल रहे हैं, हुकूमती निगरानी में ही वो काम कर रहे हैं, और इस तरह हुकूमत के लिए भी ये कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। सिर्फ निजी आईपीपीज का मसला नहीं है, हुकूमती आईपीपीज जो हैं वो इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए सालाना अवाम की जेब से निकाल रहे हैं, जो कि हुकूमती खजाने में जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात इनसे पूरा करती है, इसलिए हुकूमत की ठीक है जाहिद, आप अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। तालीम किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती है। हुकूमत की जानिब से फीसों में होश रुपा इजाफे ने तालीम के मुतलाशी अफराद को मजीद इससे दूर कर दिया। साल 2024 में सरकारी जामियात में 10 से 30% इजाफा देखा गया। नए साल भी यही इम्कानात हैं। और बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, नया सूरज आज तुलू हुआ है नए साल का, क्या समझते हैं इसमें कुछ बेहतरी आ पाएगी? जी, बेहतरी की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज को हुकूमत की जानिब से फंडिंग दी जाती है वो महदूद होती जा रही है, और इसी महदूद होती फंडिंग को देखते हुए जामियात की जानिब से भी जो तलबा हैं उनकी फीसों में इजाफा किया गया। वो ट्यूशन फीस हो, हॉस्टल फीस हो, ट्रांसपोर्ट की फीस हो या इम्तहानी फीस हो, तमाम यूनिवर्सिटीज की जानिब से जो है पिछले साल भी इजाफा किया गया था, और जो अगला साल जो क्या शुरू हुआ है नए साल में भी यही तवक्को की जा रही है, और इसी बात का इम्कान है कि फीसों में मजीद इजाफा होगा। इसी इजाफे के खिलाफ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज हुआ, यूईटी में भी एहतजाज हुआ, और तलबा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत को यूनिवर्सिटीज की जो ग्रांट है, जो फंड्स है, वो उसको बढ़ाना चाहिए। अगर ये इजाफा नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया इस दफा भी जो है वो फीसों में इजाफा करेगी, जिसकी वजह से तलबा और जो वालिदैन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। तो सरकारी जामियात के लिए पिछला साल जो 2024 था वो मुश्किल का रहा, और अगला साल भी ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ कि जामियात को जो फंड दिए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से फंडिंग जारी नहीं की जा रही। आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि जहां पर 2024 में ट्रैफिक से जुड़ी फीसों में भी तारीखी इजाफा हुआ है, वहीं ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल की बजाय रेवेन्यू जनरेट पर तवज्जो मरकूज रही। साल भर आवाम सड़कों पर खार होते रहे, वार्डन चालान पर चालान करते नजर आए। फीसों में किस तरह और किस कदर इजाफा देखा गया है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जैन, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, साल 2024 में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक चलान में जो होश रुपा इजाफा देखने में आया है। 2024 में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 55,36,818 चलान किए गए, और इन चलान की बद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 अरब 90 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है इकट्ठा किया गया। जबकि अगर साल 2023 की बात की जाए तो ये तादाद साल 2023 में 48 लाख के करीब थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 48 लाख जो है वो चलान किए गए थे, और 2023 में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए के जो है वो जुर्माने की मद में जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था। जबकि साल 2024 में 2023 की निस्बत चलान की मद में 70% तक रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया गया है। जबकि दूसरी तरफ चलान जो है वो उनमें इजाफा देखने में आया, जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा देखने में आया। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलान किए जाते हैं शहरियों को जो है वो कवानीन की पासदारी करवाने के लिए, लेकिन कवानीन की पासदारी तो
दूर की बात 2.3% तक जो इजाफा है वो देखने में आया है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इतनी चलान करने के बावजूद भी जो है ट्रैफिक हादसा में जो कमी वो मुमकिन नहीं हो सकी। जी ठीक है ज़ैन, आप अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, और नए साल पर महंगाई के हवाले से लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदगान नाजरीन को अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको महंगाई के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। नया साल तो शुरू हुआ मगर महंगाई के डेरे वैसे के वैसे बरकरार हैं। 2024 में ट्रैफिक से जुड़ी फीसों में भी तारीखी इजाफा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल की बजाय रेवेन्यू जनरेट पर तवज्जो मरकूज रही। साल भर आवाम सड़कों पर ख्वार होते रहे। साल बदल गया मगर यूटिलिटी स्टोर्स के हालात ना बदले। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब है। सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, साल तब्दील हो गया और नए साल पर भी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई और नए साल का पहला रोज़ है और आज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे हेडक्वार्टर में जो यूटिलिटी स्टोर्स है और यहाँ पर जो सार्फिन आए हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब से वो आ रहे हैं और आटे और चीनी की क्या सूरत हाल है। मिल रही है यहाँ पर? जी, हम 4 माह हो गया, हम डेली आ रहे हैं। ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, कुछ चीज़ नहीं मिल रही यहाँ से। अब देखें ना, गरीब आदमी क्या करेगा। हमें ये सहूलत मिल रही थी, चलो इधर सस्ता मिलता, हम इधर आते हैं। अब इधर मिलती कुछ नहीं रहा, अब क्या करें हम फिर। बिल्कुल, आटा चीनी और घी जो है अहम है, जो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि सब्सिडाइज होगा, वो नहीं मिल रहा। तो बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमत को आटे चीनी के हवाले से? ये जी हम स्टोर पे हमारा ऑफिस आती है, हेडक्वार्टर में ये ऑफिस है, ये हमारे लिए ताकि मज़दूर आदमी गरीब आदमी जो है ना इधर से सस्ती चीज़ें ले सकें। चलो फैसिलिटी मिलती है वो मिल लेते हैं। वो बेनज़ीर स्टोर के लिए उस वक्त हमें चीज़ें मिलती थी थोड़ी बहुत सही सस्ती। अब 4 महीने हो गए, ना आटा आ रहा, ना चीनी आ रही है, इधर कुछ भी नहीं आ रहा। और जो चीज़ें रह गई थोड़ी बहुत वो बहुत महंगी हैं। तो हमारे लिए यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद ही यही था कि यहाँ पर जो है सब्सिडाइज चीज़ें मिले, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है सब्सिडाइज, और जिसके साथ साथ चीनी भी नहीं मिल रही। तो ये हुकूमत से अपील की है कि जिस मकसद के लिए ये यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए हैं वो मकसद पूरा किया जाए और शहरियों को यहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। जी।